Good morning, dear students. Dear students, today I am going to teach here about the structure of mitochondria. Dear students, you all know very well that mitochondria is only found in eukaryotic cells. Okay, it is only found in eukaryotic cells. Dear students, the mitochondria was discovered by Kolliker. Mitochondria was discovered by Kolliker in 1880, but the term mitochondria was given by C. Benda in 1897. Okay, means Kolliker discovered the mitochondria, but he did not give the term mitochondria. The actual term mitochondria was given by C. Benda in 1897. Okay, dear students, as I told you that mitochondria is found in only eukaryotic cells, means they are freely scattered in the cytoplasm of eukaryotic cells. Suppose this is an यूकैरियोटिक सेल. ओके, एक ये यूकैरियोटिक सेल है तो ये इसका न्यूक्लियस हो गया. देन इसके साइटोप्लाज्म में ये फ्रीली स्कैटर्ड होते हैं. ओके, दीज आर फ्रीली स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल. ओके, so dear students, now we are going to talk about the structure of mitochondria. Dear students, I told you that the mitochondria is the double membrane bounded cell organelle. Okay, it is the double membrane bounded cell organelle, means इसमें दो membrane का covering होती है. ठीक है, the outer membrane and the inner membrane. Okay, outer membrane is smooth, ये smooth होती है और porous होती है, इसमें छोटे छोटे pores पाए जाते हैं. Okay, but the inner membrane is folded towards inside. देखिए जो inner membrane है ये अंदर को ऐसे मुड़ी हुई होती है. ठीक है, ये inner membrane है, ये outer membrane है. तो इनर मेम्ब्रेन देखिए अंदर को और ऐसी मुड़ी हुई है. ठीक है, इट इज फोल्डेड टुवर्ड्स इनसाइड. ओके, एंड मेक्स सम फिंगर लाइक प्रोजेक्शन. अंदर को और मुड़ करके क्या बनाती है, उंगली के जैसे. देखिए ये देखिए उंगली के जैसे है ना, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना रहे हैं. दीज प्रोजेक्शंस आर नोन एज क्रिस्टी. ओके, इनको हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं. ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखेंगे आप तो देयर इज ए स्पेस. There is a space which is present between the outer membrane and inner membrane. देखिए ये outer membrane है, ये inner membrane है, इनके बीच में देखिए स्पेस आपको दिख रहा है. ओके, दिख रहा है. This space is known as perimitochondrial chamber. इसी को हम लोग क्या कहते हैं, perimitochondrial chamber. It is known as perimitochondrial chamber या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस भी आप इसको कह सकते हैं. ओके, मींस व्हाट इज पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल चैम्बर, द स्पेस व्हिच इज प्रेजेंट बिटवीन द आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन इन द माइटोकॉन्ड्रिया. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, आई टोल्ड यू दैट द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस व्हिच आर फाउंड बाय द फोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन इज नोन एज क्रिस्टी. तो क्रिस्टी के ऊपर ही आप देखेंगे तो आपको कुछ छोटे छोटे स्मॉल नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई पड़ेंगे. देखिए ये दिख रहे हैं ना, These small knob-like structures, knob means बटन के जैसे, छोटे छोटे बटन के जैसे दिखाई पड़ रहे हैं. ओके, These knob-like structures are known as the oxysome और F1 particles. इनको हम लोग oxysome या F1 particles कहते हैं. Dear students, these F1 particles contain the enzymes which are helpful in the formation of ATP. Most important, listen again. These F1 particles, ये जो F1 particles यहाँ पर ऐसे एंजाइम होते हैं जो ATP के फॉर्मेशन में हेल्पफुल होते हैं. Dear students, you all know very well that mitochondria is the power house of cell. हम लोग इसको power house of cell कहते हैं. तो क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ATP का फॉर्मेशन होता है. ATP मीन्स एनर्जी के मॉलिक्यूल हैं. तो एनर्जी के मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, इसके एंजाइम कहाँ पे हैं, इन्हीं F1 पार्टिकल्स में, ऑक्सीसोम में होते हैं. ओके, डियर स्टूडेंट्स, this inner membrane encloses the fluid जिसको हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं. क्या कहते हैं, मैट्रिक्स. ओके, means the cavity of mitochondria is filled with a liquid which is known as matrix. Okay, it is known as matrix which is encloses with inner membrane. Okay, dear students, in this matrix माइटोकॉन्ड्रिया possess its own DNA. माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए होता है एंड इट आल्सो हैज इट्स ओन राइबोसोम. अब यहाँ पे राइबोसोम कौन से होंगे, 70S टाइप के राइबोसोम होते हैं. कौन से होंगे, 70S टाइप के राइबोसोम होते हैं और इसका खुद का डीएनए होता है.
That side is also known as the semi-autonomous organelle. बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा ये. Mitochondria is known as semi-autonomous organelle. Okay. क्यों कहते हैं इसको? बिकॉज इट पॉजेस इट्स ओन डीएनए. इसका खुद का डीएनए होता है और ये अपना रेप्लिकेशन खुद से कर सकता है. दैट साइड इज कॉल्ड सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल. ओके, इज दैट क्लियर? डियर स्टूडेंट्स, it also possesses 78 type of ribosome. And dear students, in this matrix, इस मैट्रिक्स में ही क्या होता है, यहाँ पे भी एंजाइम पाए जाते हैं. और यहाँ पे कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? रेस्पिरेटरी एंजाइम्स पाए जाते हैं. क्रेब्स साइकिल के एंजाइम यहाँ पर पाए जाते हैं. देखिए क्रेब्स साइकिल बेटा आप लोग 10th क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है? तो मैं भी आपको बता देता हूँ कि जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है. यू ऑल नो वेरी वेल. तो यहाँ पर जो ये जो मैट्रिक्स है, यहाँ पर जो एंजाइम पाए जाते हैं, दे आर हेल्पफुल इन द रेस्पिरेशन. ओके, क्रेब्स साइकिल में हेल्पफुल होते हैं. और F1 पार्टिकल में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? ATP के फॉर्मेशन में. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. ओके, आई थिंक इट इज हेल्पफुल फॉर योर स्टडी. ओके, थैंक यू.